برمنگھم کے کمیونٹی ہال میں ڈڈیال آزاد کشمیر میں قائم عابد ویلفیئر میموریل ہسپتال کے سالانہ فنڈ ریزنگ بارے مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مغیر حضرات کی جانب سے کونسلرز عہدیداران نے بھی شرکت کی ہے، جبکہ اعلان ڈڈیال نے اس نیک کار خیر میں تعاون کی بھرپور یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں پچھلے 16 سالوں سے فری علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے والے عابد ویلفیئر میموریل اسپتال کے چیریٹی ڈنر کے سلسلہ میں ہونے والے مشاورتی اجلاس کی صدارت راجہ شوکت نے کی۔ راجہ رجاسب نے کورونا کے دوران اسپتال کو درپیش مسائل اور فری سہولیات سے مستفید ہونے والے مریضوں پر اٹھنے والے اخراجات بارے تفصیلات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ مسلسل اس سلسلے میں تعاون، اسپتال کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ مسلسل جو ہم نے شروع کیا ہوا آنکھ کا آپریشن کا سلسلہ، اس کو بھی انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے، اور ہر انشاءاللہ الحمدللہ بھی ہم ہر 3 مہینے کے بعد لوگوں کے غریب اور مستحق جو لوگ ہیں ان کے فری آپریشن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا بھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ اکتوبر میں ہے، وہ بھی فری آنکھوں کا آئی کیمپ لگے گا۔ اسپتال منتظمین نے بتایا کہ عابد ویلفیئر میموریل اسپتال پچھلے 16 سالوں سے غریبوں، ناداروں اور مستحق لوگوں کو فری علاج مہیا کر رہا ہے۔ اس موقع پر لیب ڈیم کے لیڈر کونسلر جان ہنٹ، کونسلر ذاکر اللہ چودھری، کونسلر بابر باز، راجہ عاطف نائب مغل، محمد غالب اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انسانیت کی خدمت کرنا عین عبادت ہے، اور عابد اسپتال کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کا ہائی سٹینڈرڈ بنیادی انسانی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فری علاج کے ساتھ فری ادویات بھی دیتے ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ شوکت، کونسلر بابر باز، لیب ڈیم پارٹی برمنگھم کے لیڈر کونسلر جان ہنٹ، غضنفر اور دیگر نے کہا کہ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں انسانیت کے فلاحی مشن کو جاری رکھنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تمام بھائیوں کا جو اس میں تعاون کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو بھائی یہاں پر تشریف لائے، یہ پہلے بھی مدد کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعاون جاری رہے گا۔ I just want to thank Abid Welfare Trust for the invitation this evening, and we've seen the great work that they've been doing over the last 16 years, and this hospital will only continue to grow with the support of the public, and I promise you that we have big plans for this hospital going forward, so please keep on supporting us. Councillor John Hunt, leader of the Liberal Democrats in Birmingham, councillor for Bury Bar Ward. I think it's amazing to be here to see what everybody is doing to raise support and develop this hospital in Kashmir, and the timing, as I said, is very good because it's a few days after the Commonwealth Games, and this really expresses the true spirit of what we want to see. We had an annual dinner for Abid Welfare Hospital, which is obviously it's in Dadial, Siah Road, and I'd just like to say thank you very much for the opportunity to be able to do an eye camp this year, which was in March, and it's a great job that they're actually doing there at the moment, led by Rajasab and Shaukat's team. Support Uncle in his charity work and is doing good, and also we like to say that Uncle is a great person, and hospital has taken a great initiative to serve the millions of people of Dadial Azad Kashmir. Urge everyone to support this great cause. It will help and benefit the poor people in that area. لوگوں کا اویئرنیس کے لیے کیا گیا، اور ہم سب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسپتال کو آپ کی مدد سے انشاءاللہ ایک عظیم اسپتال بنانا چاہتے ہیں، کہاں کہ ڈڈیال کے علاقہ اندرال سے کوئی بھی آدمی اس علاقے سے باہر نہ جائے، غریب و نسدار اور مسیح لوگوں کے لیے یہ اسپتال ہے انشاءاللہ۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈڈیال کے لیے عابد میموریل اسپتال کسی نعمت سے کم نہیں، اس لیے وہاں کے باسیوں کی خدمت کے لیے تمام مخیر خواتین و حضرات کو اس کی مالی امداد کرنی چاہیے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ فرانس کے ممتاز سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت جاوید بٹ کے اعزاز میں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا ہے، جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات وقار بابر مغل کی رپورٹ میں۔ فرانس کی ممتاز سیاسی و سماجی و کاروباری شخصیت جاوید بٹ کے اعزاز میں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا، جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں سینئر صحافیوں طاہر خان، اعجاز فضل، محمد ادریس کے علاوہ حافظ ادیب مشتاق، آصف قریشی، قاضی کامران، ثاقب نذیر، محمد سعید افتخار پوٹھی،
मलिक फारूक के अलावा दीगर मेहमानों अनवर जावेद मुगल और अरशद भट्ट ने भी शिरकत की। इस मौका पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन वकार बाबर मुगल ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही बारे कहा कि ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस कुदरती आफत का मुकाबला करना चाहिए और सहाफी बरादरी को भी चाहिए कि इस कुदरती आफत से होने वाली तबाही के हवाले से लोगों तक मुकम्मल मालूमात पहुँचाएं। इस कुदरती आफत से दर्जनों सहाफी भी मुतासर हुए, जिनकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल की जानिब से भरपूर मदद की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात में है और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक कुदरती आफत सैलाब की सूरत में जो आई है, तो उसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो है, जो पिसा हुआ तबका है, उनकी फसलें, उनके जो मवेशी और उनके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो भी सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहे हैं। और हम एक इल्तमास करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि उनको भी चाहिए कि ये जो इशू है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालात देख कर दिल खून के आंसू होता है कि ऐसे हालात में वो लोग ना उनका कोई पुरसान हाल है। मेरी इस वक्त जितने भी बरतानिया में आबाद तारकीन वतन है, उनसे ये अपील है कि मुतासरीन के लिए दिल खोल कर जहाँ तक हो सके उनकी माली जानी जो भी हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। जो पाकिस्तानी में सैलाब ज़दगान है, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, गरीब बहुत ज़्यादा है, जो ऑलरेडी महंगाई में पिसे हुए थे, ऊपर से खुदाई आफत आ गई और उसमें बहुत ज़्यादा पिस गए हैं। और हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि सारे मिलजुल कर और पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके, जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ करके हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। तमाम बरतानिया में, पेरिस में, तमाम यूरोप में जो लोग हमारे दोस्त भाई रह रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त तमाम सियासी रस्तियों छोड़कर जो गरीब आवाम हमारी मर रही है सैलाब में, ज़दगान में, उनके माली मदद की जाए। और मैं अपनी तरफ से पूरी आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपका पूरा साथ देंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी जावेद भट्ट और दीगर ने भी सैलाब ज़दगान की मदद की यकीन दहानी करवाई और मुखय्यर हज़रात से भरपूर ताउन की अपील की। वकार बाबर मुगल, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना है कि सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी और तजारती मरासिम फरोग पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में सऊदी मार्केट में खुद को मनवाया जाए, जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नामवर पाकिस्तानी कंपनीज के नुमाइंदों समेत कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात के दौरान सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात के अलावा सरमायाकारी और तिजारती मरासिम तेजी से फरोग पा रहे हैं। तमाम शोबों में ताउन बढ़ रहा है। ताहम हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनियों को यहाँ मुतारिफ करवाया जाए, जिससे पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत नताइज मरतब होंगे और हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से मनवा सकेंगे। सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली दाहिर का कहना था, सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटी पाकिस्तान में बेहतर तौर पर सरमायाकारी करके मुख्तलिफ मौक़ों से फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए सिफारत खाना हर तरह की मुआवनत कर रहा है। नामवर कारोबारी शख्सियत फहद अली सिद्दीकी का कहना था कि ऐसे वो तमाम सऊदी सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और गैर मुल्की बड़ी सरमायाकारी के बायस पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। हमारी ये नीयत है कि जो सऊदी बिजनेसेस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको हम एक ट्रांजिशन उसकी बहुत आसान बनाएं और उस ट्रांजिशन को करते हुए फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो हमें हमेशा जो एक गैप आता है, ट्रेड डेफिसिट गैप जिसको कहते हैं, वो फुलफिल होने का तो फिर हमें IMF और हमें बरादरान मुल्क के पास कशकोल लेके नहीं जाना पड़ेगा। हमारे ही टैलेंट की वजह से हम बिजनेसेस को ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि हमें IMF की फर्दर इंशाल्लाह जरूरत नहीं रहेगी। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब की मार्केट में जगह बनाने के लिए मेहनत करना होगी ताकि इस मार्केट में भी अपनी मसनूआत और हुनर को मनवाया जा सके। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने मलेशिया के अवाम को भी अफसरदा कर दिया है। मुसीबत की इस घड़ी में सदारती अवार्ड याफ्ता मलेशिया के मारूफ समाजी शख्सियत के सदर हाजी मोहम्मद आजम बिन अब्दुल हमीद एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए मैदान अमल में आ गए हैं। इन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुल्की फंड रेजिंग मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जावेद रहमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब, गैर मामूली बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। लाखों अफराद बेघर, जिंदगी की जमा पूंजी सैलाब में बह के रह गई। सैकड़ों देहात और कब्जे सफाए हस्ती से मिट गए। मुसीबत की इस घड़ी में सदारती अवार्ड याफ्ता मलेशिया
की मारूफ समाजी शख्सियत मैपिम के सदर हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद बार फिर पाकिस्तानी आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मैदान अमल में आ गए। कोलालमपुर में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी ये तंजीम न सिर्फ मलेशिया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। Let me just convey my condolences to all the families of the victims who have died, and also those who are injured. Our heartfelt feeling of sympathy, and also we join their sadness together. We feel the pain of these victims the same that we are feeling. We are feeling the same shock, and that is why MAPIM do not waste any time. उन्होंने 92 न्यूज पाकिस्तान को दावत दी कि वो मीडिया पार्टनर्स की हैसियत से अजीम कार खैर में उनके शाना बशाना चले। We are inviting 92 TV92 as a partner. We want to make this news, this effort from MAPIM as a global effort, not only the regional part. And we are hoping that Channel 92 will be part of this campaign. We hope that we can campaign throughout the world. हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद और इंचार्ज इंटरनेशनल रिसर्च अफेयर अब्दुल मोईस का कहना था कि मुल्क भर की तमाम मसाजिद में पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए हर नमाज के बाद खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। So we pray, and I've already mobilized the whole of the masjid in Malaysia to do a special prayer tonight, and the coming khutbah also to mention about our brothers and sisters in Pakistan. So this is effort that we are now initiating. We hope the whole world will join MAPIM in this effort, and will continue to support, and we will coordinate this effort immediately to Pakistan. We are Malaysian, very sad for what happened in Pakistan, the flood disaster. So I appeal all Malaysian to join MAPIM and 92 News to help flood victim in Pakistan. हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद कि वो बहुत जल्द इमदादी सामान के साथ मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों और फैमिलीज के दरमियान मौजूद होंगे। इस हवाले से वो पाकिस्तानी हाई कमीशन कोलालमपुर से भी मुसलसल राबिते में हैं। More than 30 million people are homeless in Pakistan due to tragic floods, recent floods. Shelters they do not have, food they really do not have, medicines, innocent children, families are on the roadside. Please join MAPIM and Sheikh Azmi to support these flood victims, these innocent victims. I appeal people throughout the world, come forward and join MAPIM. With my camera team, 92 News, Javedur Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia. बेलारूस में पाकिस्तानी आमों की धूम है। मिन्स्क में सजा पाकिस्तानी आमों का मेला। सफारतखाना पाकिस्तान मिन्स्क ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मिन्स्क के बरडाना शॉपिंग मॉल में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। तफसीलात शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। सफारत खाना पाकिस्तान मिन्सिक ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मिन्सिक के बरडाना शॉपिंग मॉल में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत बेलारूसी शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों के स्टॉल्स लगाए गए, जहां पर शुरका को आम के क्यूब्स, मैंगो मिल्क शेक्स और आमों की मुख्तलिफ इकसाम पेश की गई। पाकिस्तानी आमों के मीठे जायके को शुरका ने बेहद पसंद किया। मैंगो फेस्टिवल में तकरीबन 4000 अफराद ने आम के स्टॉल्स का दौरा किया और शुरका की जानिब से फेस्टिवल की जबरदस्त पजीराई की गई। पाकिस्तानी आम बेलारूस में फलों के दरामद कुनिंदगान और ग्रोसरी चेन के नुमाइंदों को भी फराहम किए गए। शाहिद घुमन, 92 न्यूज, रूस। ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल में अपने हमवतनों के साथ खड़े होते हैं, ज़लज़ला हो, सैलाब आए हो या फिर कोई और आफत हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपने हमवतनों के लिए ना सिर्फ मदद की है बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर उनके दुखों का मुदावा भी किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। वतन अजीज में सैलाब की तबाहकारियों ने जहां तबाही मचा दी है, वहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस फिक्र में मुब्तला कर रखा है कि वो किस तरह से अपने दुखी, गमज़दा और तकलीफ में डूबे बहन भाइयों की मदद करें। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुतासरीन सैलाब के साथ हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब आया उससे पाकिस्तान में कितनी तबाहकारियाँ हुई हैं। तकरीबन 2 सूबे जो हैं मुकम्मल तौर पे ज़ेर ताब हैं। हमारी जो भी पाकिस्तान की उधर जितने लोग हैं बेचारे इस वक्त मुश्किलात में हैं।
हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जितना भी हो सके हिस्सा डालें। इतना बड़ा सैलाब जो कि पूरे पाकिस्तान की मैक्सिमम कम्युनिटी जो आबादी है जनाब उसको ले गया और इतनी तबाही आई है कि अभी तो वो कैमरे भी नहीं दिखा पा रहे। तो मैं इस मौके पे अपील करूंगा ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि वो बाहर निकले, उनका साथ दें। जो दीगर ममालिक या गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद तो लेट आती है, इस वक्त उन्हें फ़ौरन ज़रूरत है, राशन की, हर चीज़ की उनको ज़रूरत है। इस नाजुक मौका पे हमेशा जो है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनका चूँकि दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा धड़कता भी है और मोहब्बत करते हैं, और हमेशा चाहे वो डैम का हो, चाहे वो सैलाब का हो, चाहे किसी तरह की, चाहे वो कोरोना जैसी मोहलक बीमारी में जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, तो ओवरसीज़ ने हमेशा अपना दिल खोल के वहाँ पे खिदमत की है। सैलाब के लिए पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं और मैं अपील करता हूँ हर फर्द वाहद से कि सब अपने सैलाबज़दगान जितने भी हैं उनकी हेल्प की जाए। इस दुख की घड़ी में अपने बहसीत पाकिस्तानी अपने सब पाकिस्तानी भाइयों का साथ दें और इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, और यही हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस मामले को सीरियस लें और उनके लिए मदद के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ। हम अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात भूल कर पाकिस्तान में सैलाबज़दगान की मदद कर भी रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, और भरपूर तरीके से करेंगे। 7 समंदर पार बसने वाले बढ़ चढ़कर न सिर्फ इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि अपने जानने वालों, दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ तंजीमात और मुख्तलिफ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इमदाद जमा करके पाकिस्तान भिजवाने के काम में लगे हैं ताकि दुख की इस घड़ी में परेशान हाल अपने हमवतनों की मदद की जा सके। शाहिद अहमद, शाहिद 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।